हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 8085 माइक्रो प्रोसेसर। So today's outline is introduction of 8085 microprocessor, its programming model and bus organization of 8085 microprocessor. So 8085 is also pronounced as 8085 microprocessor. It is an 8-bit microprocessor designed by Intel in 1977 using NMOS technology. So it has a 8-bit general purpose microprocessor. Means it is a 8-bit data bus. It has 8-bit arithmetic logic unit that can perform 8-bit operations simultaneously. इसमें 8-bit internal data bus and registers है and 8-bit internal data bus है. So it is a single chip NMOS device with 40 pins. NMOS means N-channel metal oxide semiconductor is a microelectronic circuit. So it has 40 pins. This chip has a 40 pins. So it has multiplexed address and data bus AD0 to AD7. Lower 8-bit address bus are A0 to A7 की pins तक की pins होती है and जो data bus है उसको allocated है D0 to D7 pins which are multiplexed to reduce the number of external pins. So it works on a 5 volt DC power supply. So the maximum clock frequency is 3 megahertz while minimum frequency is 500 kilohertz. So it provides 16 address lines. So it is capable of addressing 2 raised to 16 means 64K of memory. So it supports external interrupt request. And it has also two 16-bit registers which are program counter and stack pointer. So it generates 8-bit input-output address. So it can access 2 raised to 8 means 256 input ports. And it provides 5 hardware interrupts. Interrupts are what? Interrupts are signals जो external devices या फिर internal devices generate करती है माइक्रोप्रोसेसर को कोई टास्क परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करने के लिए, राइट? So 8085 has a 5 hardware interrupts and 8 software interrupts. Hardware interrupts are generated from the external devices or hardware. Or in software interrupts are generated by any internal system of the computer. So software interrupts जो होते हैं वो vectored होते हैं. Vectored interrupt में जो interrupt address होता है वो प्रोसेसर को पता होता है and non-vector interrupt में interrupt address प्रोसेसर को पता नहीं होता. So software interrupts are vectored type interrupts. So these 5 hardware interrupts are vectored and उनमें से एक है non-vectored. So first is TRAP. It is vectored. RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5 all are vectored. But INTR is non-vectored. RST means restart instructions and INTR is interrupt acknowledge. So it provides accumulator, 5 registers, 6 general purpose registers and 2 special purpose registers, stack pointer and program counter. Now let's see about 8085 programming model. So microprocessor के 8085 programming model में internal registers and उसके functions, उसके वर्क के बारे में डीप में डिस्क्रिप्शन है, राइट? इस प्रोग्रामिंग मॉडल में. सो प्रोग्रामिंग मॉडल में जो प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स है मीन्स जो रजिस्टर्स एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. सो 8085 programming model includes 6 registers, 1 accumulator and 1 flag register. And it also has 2 16-bit registers, stack pointer and
प्रोग्राम काउंटर, दोनों 16 बिट्स के हैं. सो these are the general purpose registers. B, C, D, E, H and L. These are general purpose registers. So let's see about general purpose registers. So जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज माइक्रोप्रोसेसर में टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए होता है. सो ये जो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है बी सी डी ई एच एंड एल, वो उसमें 8 बिट डेटा स्टोर करते हैं. सो ये रजिस्टर कंबाइन होके रजिस्टर पेयर बनाते हैं. लाइक बीसी कंबाइन होके पेयर बनाएगा, फिर डी एंड ई, फिर एच एंड एल. सो ये सब पेयर बनाएंगे तो 8 प्लस 8 दोनों रजिस्टर का मिला के 16 बिट हो जाएगा. सो डी ई एंड एच एल कंबाइंड होके फिक्स्ड रजिस्टर पेयर बनाएंगे 16 बिट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. सो इट इज यूज्ड टू स्टोर और कॉपी डेटा यूजिंग डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस. डेटा ट्रांसफर और डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी एंड जनरल पर्पस रजिस्टर के बीच में डेटा कॉपी करते हैं. Right? So these registers, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है या क्या है, प्रोग्रामेबल कहते हैं इसको. These registers are always available to the user. So ये जनरल पर्पस रजिस्टर डेटा होल्ड करने के लिए यूज होते हैं. एंड ये क्या करता है, ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो मेमोरी के अंदर होते हैं, मेमोरी में कोई डेटा है उसके ऊपर जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हुए तो वो क्या करते हैं, उसके रिजल्ट को भी वो स्टोर करते हैं, होल्ड करके रखते हैं. सो ये HL रजिस्टर है. HL रजिस्टर ये एज अ डिफॉल्ट डेटा पॉइंटर है. ये क्या है, अगर इसको एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज करें तो ये क्या करेगा, ये 16 बिट एड्रेस है जिस मेमोरी पर उसका वो एड्रेस होल्ड करके रखेगा. सो एल रजिस्टर क्या है, एल रजिस्टर लोअर बाइट एड्रेस की स्टोर करके रखता है. एंड एच रजिस्टर है वो एड्रेस की हायर बाइट जो होती है उसको स्टोर करके रखता है. सो एसएल रजिस्टर पेयर को मेमोरी और डेटा पॉइंटर भी कहते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर को स्क्रैच पैड रजिस्टर भी कहते हैं क्योंकि हम इस रजिस्टर में डेटा स्टोर कर सकते हैं. डेटा स्टोर और डेटा रीड करने के लिए हमको बस एक्सेस की कोई बस में से एक्सेस लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती. राइट? इट इज एन ऑल इंटरनल ऑपरेशन. सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े. नाउ let's see about accumulator. Right? So it is an 8 bit register. It is identified as a A. accumulator क्या है, एक रजिस्टर है. राइट? वो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म पे डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. सो इट इज 8 बिट रजिस्टर. ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिक्स का एक पार्ट है. सो जो भी रिजल्ट आएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है. राइट? सो एक्यूमुलेटर के स्पेशल फंक्शंस कहें हम तो ये क्या करता है, इट हैज टू private one of the operand for any ALU operation. Right? It has to accumulate. Means ये क्या है, जो भी रिजल्ट होता है ALU ऑपरेशन का, ठीक है, वो accumulate करता है. It has works as a register for input output accesses. जब भी डेटा रीड होता है इनपुट डिवाइसेस में तो वो कहाँ पे आता है, accumulator में. और फिर आउटपुट डिवाइसेस वो accumulator से डेटा गेट करता है. So it is a part of arithmetic logic unit and it is used to store 8-bit data to perform arithmetic and logic unit operations.
and results of operations is stored in an accumulator. Now, flag registers. So, it is a special purpose register. It is a status register in microprocessor, जो माइक्रोप्रोसेसर का करंट स्टेट कंटेन करता है. Flag is a flip-flop. It indicates some condition produced by the execution of an instruction, right? For example, इस एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो वो इन्फॉर्म करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जीरो फ्लैग है वो सेट तब होगा जब इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का रिजल्ट 0 आएगा. सो 8085 में फ्लैग रजिस्टर 5 फ्लैग कंसिस्ट करता है. फ्लैग रजिस्टर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है, उसका एडजेसेंस होता है, राइट? वो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास होता है. सो जब ALU इस एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो रिजल्ट जो भी आता है वो ट्रांसफर होता है इंटरनल डेटा बस को, एंड रिजल्ट का स्टेटस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है. सो डिफरेंट फ्लैग्स एंड उसकी पोजीशंस फ्लैग रजिस्टर में कहाँ पे वे ये हम इस फिगर में देख सकते हैं, राइट? सो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंक्लूड्स 5 फ्लिप फ्लॉप्स जो सेट और रीसेट होते हैं ऑपरेशन के बाद में. मीन्स वो कब सेट और रीसेट होता है? डेटा की कंडीशन के हिसाब से, जिसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर और दूसरे रजिस्टर में स्टोर होता है. सो ये सभी जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, कैरी, ये सभी फ्लैग्स है. ठीक है. सो इन सभी फ्लैग की बिट पोजीशंस हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. So most commonly used flags are 0, carry and sign. So microprocessor ये flag को डेटा की कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 नंबर का एडिशन करना है तो 2 नंबर के एडिशन के बाद अगर उसके जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया वो अगर 8 बिट से ज्यादा आया तो फ्लिप फ्लॉप कैरी को इंडिकेट करने के लिए कैरी फ्लैग यूज करता है जो सेट है 1 पे. जब अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आता है तो फ्लिप फ्लॉप कॉल करता है 0 विद Z फ्लैग को 1 पे सेट करने के लिए. तो दिस फिगर शोज एन 8 बिट रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, वो एक्यूमुलेटर के पास होता है. सो ये बिट्स में से 5 बिट्स पोजीशंस 5 फ्लिप फ्लॉप आउटपुट स्टोर करने के लिए यूज होती है. सो अब यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट इज S, साइन फ्लैग. सो ये फ्लैग सेट तब होता है जब MSB, दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रिजल्ट 1 होता है. नेगेटिव बाइनरी नंबर्स 8085 सीपीयू में रिप्रेजेंट होते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में. सो साइन फ्लैग इंडिकेट करता है रिजल्ट का साइन, जैसे कि 1 मीन्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्ट आया 1. सो 1 मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 मीन्स नेगेटिव, and 0 means most significant bit is 0 means positive. अगर यहाँ पे 0 होता तो positive, and यहाँ पे अगर 1 है तो negative, right? So result में अगर 7th bit 1 हो, 7th bit 1 है तो set होगा 1 पे, otherwise it is set to 0, right? Now जीरो फ्लैग Z. सो जब ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आता है तब ये 0 फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज इट इज रीसेट. सो ये फ्लैग एक्यूमुलेटर या फिर दूसरे रजिस्टर एस के रिजल्ट से मॉडिफाई भी हो सकता है. सो 1 if the result is 0 and it is set to 0 if the result is not 0. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा रिजल्ट यहाँ पे 0 आया तो Z इज इक्वल टू 1, राइट? ये 0 पे सेट होगा. और 0 फ्लैग सेट होगा तो यहाँ पे अगर रिजल्ट 0 आया तो ये सेट होगा 1. नाउ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग AC. So it is set to 1 when a
carry bit is generated by third bit and passed to bit fourth bit, passed that bit to fourth bit. For example, यहाँ पे इन दोनों के सम के बाद रिजल्ट आया 1, मीन्स यहाँ पे हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो थर्ड बीट के बाद यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कैरी, थर्ड बीट के बाद कैरी आई रहा है, सो ये यहाँ पे 1 आया। देन फिर से बिकॉज 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0, बट यहाँ पे 1 प्लस 1 0 एंड कैरी 1, सो ये थर्ड बीट के बाद फोर्थ बीट पे ये कैरी पास हुई, राइट। सो एक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा 1 पे, राइट। सो ये फ्लैग डेसिमल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इट इज सेट टू 1 इफ कैरी आउट फ्रॉम बिट 3 ऑन एडिशन और बोरो इनटू बिट 3 ऑन सब्सट्रैक्शन, अदरवाइज सेट टू 0। नाउ पैरिटी फ्लैग। सो ये फ्लैग सेट तब होता है जब रिजल्ट आता है इवन पैरिटी, मीन्स इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स। अगर पैरिटी ऑड आती है तो पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाता है। सो पैरिटी फ्लैग का यूज डेटा ट्रांसमिशन के टाइम जो एरर्स आती है उसे चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे इस बीट में हम देख सकते हैं कि टोटल 4 बीट्स है वंस की, राइट, 1 2 3 4। So this is even, so it is set to 1. Now CY, carry flag. This flag is set whenever there has been a carry out of or a borrow into the higher order bit of the result. मीन्स ये फ्लैग वो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं जो मल्टीबाइट्स नंबर को ऐड कर और वी कैन से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज सेट टू 1 अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट में कैरी आए, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आया है, राइट। सो कैरी फ्लैग सेट टू 1। If arithmetic operation results in carry, then it's set to 1, otherwise it's set means 0. And here X is undefined flag. So arithmetic logic unit has 5 flag registers that set or reset after an operation according to data conditions of the results in accumulator and other registers. It is helpful in decision making process of microprocessor. And conditions are tested through software instructions. For example, jump on carry is implemented to change the sequence of program when carry flag is set to 1. Now, stack pointer and program counter. So, it is used as a memory pointer. स्टैक एक मेमोरी का रिजर्व पोर्शन होता है, मेमोरी में एक भाग रिजर्व किया जाता है स्टैक के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है, एंड वो सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में होता है। सो ये मेमोरी एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। सो इट इज यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर, दैट पॉइंटर पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन इन रीड और राइट मेमोरी, कॉल्ड स्टैक। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर 16 बिट का होता है एंड ये स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सो स्टैक पॉइंटर हमेशा स्टैक के टॉप में पॉइंट करता है। स्टैक पॉइंटर स्टैक में जो डेटा स्टोर होता है उसका ट्रैक रखता है, राइट। सो स्टैक पॉइंटर स्टैक में जब भी राइट ऑपरेशन होता है तो वो डिक्रीमेंट होता है, रीड ऑपरेशन होने के बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है। सो मेन फंक्शंस ऑफ स्टैक पॉइंटर इज टू point to a memory location in the read write memory। ये जो स्टैक में
रिसेंट एंट्री होती है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अ बाइनरी इंफॉर्मेशन टेम्पररीली। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तब ये टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। सो नाउ प्रोग्राम काउंटर। सो microprocessor uses program counter register to sequence the execution of instructions कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, फिर उसकी सीक्वेंस डिफाइन करता है। सो ये मेमोरी में प्रोग्राम जहां पर हो रहा होता है उसका एड्रेस होल्ड करता है। मीन्स इट्स फंक्शन इज टू पॉइंट टू मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड। जब रीसेट एक्टिवेट होता है मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो ये प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा सेट 000H पे। मीन्स पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर चला गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा। सो फिर ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट बाइट पे। जब नया इंस्ट्रक्शन आएगा तो बाइट फेच होगी एंड प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा 1 से। वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा एंड वो मेमोरी लोकेशन का डेटा फिक्स एग्जीक्यूट होगा। सो मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज टू point to the memory address from which the next byte is to be fetched. So main हम यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर एक्ट एज अ पॉइंटर टू द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करना होता है उस पर पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है उसका मेमोरी एड्रेस लोकेशन होल्ड करके रखता है। तो जब कोई इंस्ट्रक्शन फेच करना हो तब माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को, जो डेटा है, डेटा को एड्रेस बस पे रखता है एंड देन मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट बाइट फेच करता है एंड देन माइक्रो प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। सो वो पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन के दूसरे बाइट पे। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस बाइट्स के नंबर पे डिपेंड है, राइट। सो यहाँ 8085 में एड्रेस बिट्स होती है 16 बिट की। नाउ लेट्स सी अबाउट बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 प्रोसेसर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्टम बस, ठीक है। सो सिस्टम बस, here system bus contains control bus, address bus and data bus which are connected to and communicate with CPU, memory and input output devices. So we know that what is bus. Bus is a set of pins, wires and signals. Means bundle of wires जो ग्रुप में होते हैं एंड 8085 माइक्रोप्रोसेसर में काम करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सो इसमें 3 सेट होते हैं कम्युनिकेशंस लाइंस के, जिसको हम बसेस कहते हैं, जो है एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सो ये तीनों मिलकर बनती है सिस्टम बस। सो यहाँ पे हम फिगर में 8085 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो एड्रेस बस मीन्स ये बस में से माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी लोकेशंस एंड इनपुट आउटपुट लोकेशंस भेजता है। एड्रेस बस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट लोकेशन का एड्रेस रीड एंड राइट करने के राइट के फॉर्म में कैरी करता है, राइट। सो 8085 में एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट, राइट। A0 to A15, A0 to A15 address bus lines. So microprocessor can be used to access 16 bits address, means 16 address lines है ये A0 to A15 address lines ये capable है to address 65,000 These addressing lines are capable to 65,536 memory locations. So 8085 has 64K memory locations.
सो एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, मीन्स बिट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, राइट? प्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर टू इनपुट और माइक्रोप्रोसेसर टू आउटपुट. Now, next is data bus. So, it is a group of 8 lines identified as D0 to D7. So, the data bus of 8085 processor consists of 8 parallel lines D0 to D7. Data bus is a bidirectional bus, means data CPU to memory and memory to CPU या फिर input output locations and vice versa transfer हो सकता है. We can see it is connected to memory, input, output. So data bus input output ports and microprocessor को connect करता है and microprocessor memory and input output port में से data read भी कर सकता है, write भी कर सकता है. So 8 data lines enable microprocessor to manipulate data ranging from 00H to FFH, means 256 numbers means the range. So largest number appear on the data bus is 1111 means 255 decimal. So as the data bus is of 8 bit, means 8085 is known as a 8-bit microprocessor because of data bus is 8 bit. Now about control bus. So 8085 microprocessor टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल बस यूज करता है. माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल बस को जो मेमोरी एड्रेसेस डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस है उनको अनेबल करने के लिए सिग्नल भेजती है. सिग्नल जैसे कि मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट एंड इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट. सो ये सिग्नल कौन से टाइप की डिवाइसेस है जिसके साथ माइक्रोप्रोसेसर को कम्युनिकेट करना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं, राइट? सो it comprises of various signal lines that carry synchronization, timing and control signals. These signals are used to identify device type with which microprocessor unit intends to communicate. जैसे मैंने बताया, control signals are read, write, upload and fetch. memory read क्या करता है? वो डेटा रीड करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी में से. मेमोरी राइट क्या करता है? वो मेमोरी में से डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को राइट करता है, राइट? इट इज राइट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू मेमोरी. इनपुट आउटपुट रीड and input output write are also accepts and sends the data to input output devices. Thank you.